Good morning, dear students. So, once again, integration. All of you are, I believe, doing practice what I had done till in integration. So, we reached by parts. Fine. So, last video, all of you have seen that in that I mentioned couple of sums of integration by parts, U into V rule. Now, I'm taking one or two more problem in by parts again. See, one question it is I equals to integration of sine inverse x into dx, correct? Sine inverse x into dx. Similarly, it can be cos inverse x, tan inverse x, sine inverse root x. Like lot of question in inverse it can be. So, see why we are using here by parts. Although it looks only sine inverse x, there is no other function. But again, don't take x to the power 0 here. If you take x to the power 0, it becomes algebraic, x to the power 0. But that integration becomes very complicated. So what we do in inverse integration, whenever we have to do inverse functions integration, then we take sine inverse x, this total, as a t. We go for first substitution. We take sine inverse x as a t. See, there is a way you can go sine inverse x, x into sine inverse x also, 1 into dx, but that way also you can do. But what I suggest, substitute this. Put sine inverse x as a t. So x equals to what it becomes? Sine t. Okay? Now dx is going to be cos t dt. Fine? So this I is equal to, now in place of sine inverse x it will come t, correct? And this cos t, this is for dx. So this is going to be t cos t into dt, correct? Now here algebraic and trigonometric looks फाइन. तो यहाँ पे मुझे algebraic और trigonometric मिल गया, तो यहाँ से अब इंटीग्रेशन आप कर लेंगे. u into v rule, यहाँ पे algebraic it is going to be as a u, because ILATE you remember, ILATE. So look at this, a comes before trigonometric. So a means algebraic, which is t. So this is going to be u. So u outside, integration of v, fine, minus derivative of t with respect to t into again integration of cos t dt, and this entire term is going to be again integrate with respect to t. So now this is t, integration of cos t, all of you know, sin t, minus derivative of t is 1, integration of cos t is sin t. So this is sin t and dt left. Finally, t sin t minus, this become plus cos t, because integration of sin t is minus cos t and plus c. Fine. Now time came to resubstitute the t. T we have taken t as a sine inverse x. Look at this. What we have taken t? Sine inverse x. So look at this. At the end here is equal to sin t we can write x, and t we can write sine inverse x. Fine. Plus, what about cos t? Sin t is x, so cos t becomes root under 1 minus x square. Fine. Plus c. So this is your I. This is the integration of sine inverse x. This part all of you understood, I believe. Cos t is, sin t is x. Sin t is x. So what is going to be cos t? Cos t you know, root under 1 minus sine square t. Fine. So this becomes root under 1 minus x square. Fine. So this way it came cos t. So the integration of sine inverse x is x sine inverse x in plus root under 1 minus x square. Fine. So just go through this. I believe you understood
Some student they say, sir, can we do that 0 into x to the 0 into sine inverse? That way also you can do it. Look at this. What do you do? X to the power 0 into sine inverse x into dx. Fine. And here algebraic become x to the 0, and then you can proceed. That way also you can do. X to the 0 outside, sine inverse x will be outside because inverse is there. So inverse will come first. Fine. So there, that way also you can do. Sine inverse x you take outside, integration of x to the 0 dx minus derivative of sine inverse x is 1 upon root under 1 minus x square into integration of x 0 is x and then dx. And further you integrate here after this step and you will reach the same answer. So this is one of the way also. That way also you can do. Some books they prefer to integrate this way. What I suggested, go for substitution, and that way substitution also will help you to have a simple calculation. Correct? And this is what substitution I done. Put sine inverse x as a t. Then x equals to sine t, dx came cos t dt, and then we got algebraic and trigonometric, and then we integrated with the help of by parts. Fine. So I think this sum is clear to all of you. ठीक है, तो ऐसे इन्वर्स वाले जो भी होंगे that you can do it. चलिए नेक्स्ट एक और सिचुएशन देखते हैं इन्वर्स फंक्शन में ही. Let's say we have to integrate tan inverse x. I equals to, I have taken tan inverse x. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है. तो दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक दैट मेथड जो मैंने आपको सेकंड में बोला, x टू 0 इंटू tan इनवर्स x. ऐसे लिया. मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ. सब्स्टिट्यूशन भी है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं आप. सो नाउ यहाँ पे अलजेब्रिक और इनवर्स आ गया. तो इनवर्स इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी u बिकॉज i इज कमिंग ऑलवेज फर्स्ट इन आइलेट. सो tan इनवर्स x, दिस इज एज ए u. Integration v becomes x to the power 0 dx minus derivative of tan inverse x लिख लीजिए डायरेक्ट 1 upon 1 plus x square और इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 0 dx. ये जो इंटीग्रेट होके आएगा इनका प्रोडक्ट, उसके बाद फिर से एक आप इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, लुक एट दिस. सो x to the 0 का इंटीग्रेशन डियर x होगा, dx है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x to the 0 plus 1 upon 0 plus 1, so that is going to be x. So x tan inverse x minus सेम वे x to 0 का इंटीग्रेशन यहाँ x आएगा. सो ये x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx. फाइन, क्लियर है यहाँ तक? नाउ x tan inverse x is already integrated, so x tan inverse x is here minus. अब यहाँ पे ये देखें आप कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है, इसको अगर मैं पुट करूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इफ आई टेक एज ए टी, सो डिफरेंशिएट करने पे ये 2x dx विच इज dt. क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे 2 से इंटू कर दूं और 1/2 बैलेंस कर लूं, ठीक है, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा. फाइन. तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वी कैन राइट. ठीक है. सो ये करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ सकते हैं. वंस यू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ सम्स बेस्ड ऑन दिस कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मिल रहा है ऊपर, सो वी राइट डायरेक्टली लॉग. सो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई विद 2, करेक्ट, एंड हियर 1/2. वी एडजस्ट दिस constant we can adjust in integration, that I told you every time, but you cannot adjust variable, you cannot put outside variable. Constant we can multiply and divide. So finally x tan inverse x minus 1/2 log of 1 plus x square plus c is going to be answer of this integration. ठीक है, यहाँ पे आप देख लें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2x मिल गया अपने को. ठीक है, तो log of 1 plus x और 1/2 तो हमने बैलेंस किया था, so that should be there only. So this is going to be the
आंसर ऑफ tan इनवर्स x। हमने किस तरह से लिया, x टू द पावर 0 वाले कंसेप्ट से। आई हैव नॉट वेंट विच वे द वे द प्रीवियस सम व्हाट आई डिड, सब्सटीट्यूशन करके। आप इस सम को सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चन इन इनवर्स जो आप प्रैक्टिस करें। देयर आर लॉट ऑफ सम्स इन बुक दैट यू कैन ट्राई। आइए नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं। वी हैव वन सिचुएशन इन इनवर्स ओनली। अगर मैंने एक प्रॉब्लम लिया डियर, लुक एट दिस, log I इक्वल्स टू log of log x upon x, ठीक है। सी दिस क्वेश्चन केम इन वंस इन एनडीए। अब इसके अंदर देखो, पहले सब्सटीट्यूशन सोचा जाएगा। आप अगर इसको कभी स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि log और 1/x, सो नाउ log x विल टेक आउटसाइड और 1/x को अलजेब्रिक u ले लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसको यहाँ से ही ओपन कर दोगे, इट बिकम्स वेरी लेंदी, ठीक है, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव डिमिनिश नहीं होगा, वो और पावर कैरी करता चला जाएगा, ठीक है। अगर x होता तो इट वुड बी ग्रेट, x का डेरिवेटिव 1 तो x एलिमिनेटेड हो जाता। सो यहाँ पे व्हाइल लुकिंग दिस प्रॉब्लम इट लुक्स कि मुझे इस log x को सब्सटीट्यूट करना ही पड़ेगा। फाइन, सो नाउ वील गो टू substitution where log x I took as a t. So we know what we do. We differentiate. Log x is 1/x and this is dt by dx. So this becomes dx upon x equals to what? dt. So look at this. Dx upon x we have balanced with dt and log of log x becomes now log t. So in terms of t में ये होगा डेयर log t फाइन इंटू डी टी। क्लियर? सो सी log of log x upon x now substituted into log t dt. अब log t dt we know how to integrate. अगेन आप यहाँ पे x to the power 0 यानी t to the power 0 क्रिएट कर लें। फाइन, दिस इज गोइंग टू बी t to the power 0 into log t and dt. फाइन, सो अब बाई पार्ट्स कर लें। आइलेट है तो log इज गोइंग टू बी u, सो log t इज आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 0 या dt कर लो, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log t इज 1/t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 0 लिखिए या ओनली dt भी लिखें, देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज dt का भी इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी t एंड दिस इज dt। क्लियर यहाँ तक? Look at this. Now integration of dt is going to be t log t minus 1/t. Integration of dt is t and this is whole multiplied with this and then dt. So at the end we have t log t minus integrate t and t get cancelled and integration of dt becomes t plus c. Fine. So now what we have taken t, this integration done here, integration done here. अब हम क्या कर लेंगे dear? Substitute कर लेंगे कि what we have taken t, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कि हमने कैसे कैसे बढ़ा, log x को मैंने t लिया, ठीक है, substitution log x I took t and then look at this, log x I took t here, then differentiate करना है, dx by x आ गया dt. So this entire integration transform into log t dt where we have taken t to the power 0 log t by parts करने के लिए, u into v करने के लिए. So here t to power 0 रखिए या dt रखिए, that is same thing. So log t dt into 1/t dt, ठीक है। And then after by integration we have to now resubstitute. T we have taken log x. So finally, क्या लिख सकता हूँ फाइनल आंसर? This is going to be log
x log x minus log x plus c. Here or you want to write log x, you can take common also. So log x, if you take common, so log of log x minus 1 plus c is going to be the answer. Fine. So you understood कि आपने को सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ा, ठीक है. सब्स्टिट्यूशन करने के बाद बाय पार्ट्स हुआ. So see, substitution plays every role of substitution is everywhere. सब्स्टिट्यूशन करने से इंटीग्रेशन बिकम सिंपल. बाय पार्ट्स में सिंपल हो गया. अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं करता तो ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता. यू इन टू वी स्टार्ट भी कर देता. लॉग ऑफ लॉग एक्स को मैं बाहर लेता, 1/x को v करके अंदर इंटीग्रेट करता, तो इट बिकम्स वेरी लेंदी. ठीक है. सो फर्स्ट वी सब्स्टिट्यूटेड एंड देन इंटीग्रेशन बिकम्स सिंपल. ठीक है डियर. सो दीज आर फ्यू प्रॉब्लम्स इन बाय पार्ट्स. लॉग वाले प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान से रखें करें, क्योंकि लॉग के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इज सॉल्व बाय पार्ट्स. ठीक है. अगर कहीं सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है तो वो आप वो कर सकते हो, देयर इज नथिंग. सिंपल क्वेश्चन है तो वो हो जाएगा, बट लॉग वाले मैक्सिमम प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी सॉल्व बाय पार्ट्स ओनली. ठीक है. तो चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं डियर. लुक एट दिस. सो वी हैव नेक्स्ट सिचुएशन. नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लूँ इंटीग्रेशन का. I equals to, we'll have to see whether it is by parts or क्या करना है. देखते हैं. x cube e to the power x square dx. Fine. All of you know the integration of e to the power, which is e to the power x. Correct? E to the power ax plus b into dx, that is also e to the power ax plus b upon a. करेक्ट. x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, प्लस c. ठीक है. प्लस c. तो दीज रिजल्ट यू नो. सो इंटीग्रेशन के टेबल में हमारे पास यही दो रिजल्ट है. बट लुक एट हियर, यहाँ पे ये e टू द पावर x स्क्वायर दिख रहा है हियर. तो इसके हम u इंटू वी तो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज e टू दी पावर x तो ऐसे भी v बनने वाला है, और e टू आर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता नहीं है. सो व्हाट वी विल डू. तो देन फर्स्ट विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन. हम इस x स्क्वायर को ही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. क्या कर लेंगे डियर? सब्स्टिट्यूट करेंगे. पुट x स्क्वायर एज ए t. ठीक है. तो ये e टू दी पावर t बनेगा, तो e टू आर t का इंटीग्रेशन है हमारे पास, e टू दी पावर t. करेक्ट. तो जब x स्क्वायर t लिया तो वी हैव टू डिफरेंशिएट. 2x dx equals to dt. So x dx becomes dt by 2. ठीक है. अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में देखिए, हमारे पास x क्यूब पड़ा है, हमें मिला x dx. तो एक x स्क्वायर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो वो x स्क्वायर तो हम एडजस्ट कर लेंगे t से. x स्क्वायर t है हमारे पास ही. ठीक है. सो नाउ आवर इंटीग्रेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, एक्स स्क्वायर के लिए मैंने t लिया, e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी e टू द पावर t, और x dx जो हो गया वो dt बाई 2. ठीक है. अंडरस्टूड. सो हमारा x क्यू जो है बैलेंस हो गया डियर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में. देखिए यहाँ पे ये जो x क्यू था, x क्यू, इसको मैंने एक्स स्क्वायर और x dx के साथ अलग किया. x dx हमारे लिए dt बाई 2 बना दिया. ठीक है. और ये x स्क्वायर जो बचा था वो क्या था? t. फाइन. सो दैट इज वाई दिस केम t e टू आर t dt बाई 2. ठीक है डियर. चलें आगे. लुक एट दिस. नाउ 1/2 इज कांस्टेंट, विल टेक आउटसाइड. t इंटू e टू द पावर t इंटू dt. फाइन. अब ये बाय पार्ट्स को फॉलो कर रहा है, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल. तो 1/2 हमने बाहर रखा है. सो वी हैव 1/2 आउटसाइड. पूरे को बॉक्स से बाहर कर लें, बाय पार्ट्स करें तो अलजेब्रिक आउटसाइड u e टू द पावर t इज v dt माइनस
डेरिवेटिव ऑफ टी होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, फंक्शन टी का है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी डी टी, एंड पूरी ये इंटीग्रेशन होगी विथ रिस्पेक्ट टू टी. नाउ बॉक्स इज क्लोज्ड हियर. This is equal to 1 by 2. This is equal to 1 by 2 wait. So this is 1 by 2 t e to t का इंटीग्रेशन e to the power t माइनस ये t का डेरिवेटिव 1 हो गया, e टू t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t. ठीक है, ये 1 इंटू e टू द पावर t और ये पूरा dt. सो फाइनली 1 by 2 t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t, वापस e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू t एंड प्लस c. ठीक है डेयर, अब मैं t को रीसब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ. व्हाट वी हैव टेकन t, हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो अगेन हमने लास्ट में इसको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन में वी हैव टू ऑलवेज रीसब्स्टिट्यूट एट द एंड. सो डियर यहाँ पे मैं अब लिख सकता हूँ 1 by 2 e टू द पावर t मैंने कॉमन लिया है, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर, इनसाइड t तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 plus c. So this is going to be the answer of our question. ठीक है, इंटीग्रेशन क्या था, एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर. सो लुक एट द स्टेप्स. क्या क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर को पहले मैंने बोला टी पुट कीजिए, देन वी डिफरेंशिएटेड, फिर एक्स डी एक्स इज डी टी बाई 2, देन पूरी इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें, ई टू इन टर्म्स ऑफ टी, t e to t dt by 2, 1 by 2 t I took constant, and then t into e to the power t में हमने by parts यूज किया, u into v rule, since e to the power t is exponential and t is algebraic, so algebraic outside exponential v. ठीक है, t यहाँ पे क्या है, u, and e to the power t is v. ठीक है, and then we have used u into v rule. Fine. At the end we have resubstituted, where t we took e to the x square, so e to the power x square t minus 1, that is x square minus 1 plus c. Fine. So x cube x square is integrated in this way. Fine dear. चलिए, so we have seen these couple of problems in by parts. Now we will, देखो बाय पार्ट्स में भी आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना ही पड़ा कहीं ना कहीं, तो सब्स्टिट्यूशन का रोल एवरीवेयर है इन एंटायर इंटीग्रेशन डियर. ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेशन के हम नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं. इस फॉर्म को देखो, लुक एट दिस फॉर्म इज, वी कैन राइट दिस वे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx plus f dash x into dx is equal to e to the power x fx plus c. ये होता है इसका इंटीग्रेशन. ये फॉर्म भी है. अब इस फॉर्म को अच्छे से समझो कि ये कैसे हुआ. अगर मैं इसको प्रूफ करने जाऊं इस फॉर्म को, सी दिस फॉर्म यू हैव टू रिमेंबर दैट e to r x fx plus f dash x dx is e to r x fx plus c. तो अगर मैं एक एग्जाम्पल देखूं आपको, एग्जाम्पल से मैं बताता हूं इसको, फिर मैं इसके प्रूफ को भी बताऊंगा. लेट्स से e टू द पावर x और हमारे पास sin x प्लस cos x है. ठीक है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है. तो इट लुक्स फर्स्ट कि ये u है और ये टोटल v दिख रहा है, तो बाय पार्ट्स करना पड़ेगा एंड इट बिकम्स वेरी लेंदी. तो इसके बचने के लिए मैथमेटिशियन ने इस फॉर्म को जनरेट किया. तो इस फॉर्म में क्या एडवांटेज है कि अगर fx है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल है और इन बिटवीन देयर इज अ प्लस, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखते हैं e टू द पावर x इंटू fx. लुक एट दिस. ठीक है, सो यहाँ पे भी देखो, इस i में
ई टू द पावर एक्स, ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस इज ऑलरेडी देयर, सो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं प्लस सी, दैट्स इट, ये आंसर हो गया. नो नीड टू गो फॉर बाई पार्ट्स ऑल्सो. सो what is important, that this result that you have to remember. ठीक है, इस फॉर्म पे आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज भी बने हुए हैं, आप चाहो तो उसमें गो थ्रू कर सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, सो ये फॉर्म अपने को ध्यान में रखना है. ठीक है, नाउ आई वाज सेइंग दैट कि मैं इस फॉर्म को प्रूफ करके दिखाऊं ये कैसे बेसिकली आया. आपके मन में चल रहा होगा कि हाउ वी कैन गेट दिस रिजल्ट. What you are saying that e to the power x fx plus f dash x becomes e to the power x fx plus c. See कैसे करेंगे, तो हमने I इक्वल्स टू ये e to the power x fx प्लस f dash x, ठीक है, इंटू dx लिया, ये दिस इज द इंटीग्रल. नाउ लुक एट दिस. अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको दो इंटीग्रल में स्प्लिट करता हूँ. वन आई टू ई टू आर एक्स एफ एक्स एक ले लिया डी एक्स प्लस एक इंटीग्रल बना लिया हमने ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स. ठीक है, आई हैव स्प्लिटेड इनटू टू इंटीग्रल. नाउ ठीक है, आई हैव स्प्लिटेड इनटू टू इंटीग्रल. अब मैं यहाँ पे इसमें बाय पार्ट्स करता हूँ. एफ एक्स अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रिक बाहर होता है, यू हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स दैट बिकम्स वी. ठीक है, दिस इज डी एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले डेरिवेटिव कर लेंगे आप किसका, एफ एक्स का, तो ये क्या आएगा एफ डैश एक्स, और फिर से इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर एक्स का डी एक्स, एंड ये क्लोज हो जाएगा डी एक्स से. ये इसका इंटीग्रेशन हुआ, प्लस इसको मैंने कुछ नहीं करना है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स डैश एक्स डी एक्स. ठीक है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया. लुक एट दिस, एफ एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस यहाँ पे डियर ई टू आर एक्स का इंटीग्रेशन क्या गया, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, और ये हमारा एफ डैश एक्स था इंटू डी एक्स, प्लस ये इंटीग्रल हमने एज इट इज एज छोड़ा है, ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स. सो दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल गेट कैंसल, प्लस और माइनस, करेक्ट. सो व्हाट लेफ्ट, e to the power x fx plus c. This is what we have to found. Look at this, यही हमने प्रूव करना था, e to the power x fx plus c. So you understood what I did. e to the power x प्रूफ के लिए हमने e to r x fx को दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट किया, इसमें और इसमें, एंड वी वेंट इन दिस फॉर u into v रूल. ठीक है, पहले वाले इंटीग्रल में u into v रूल किया, सेकंड वाले इंटीग्रल को कुछ नहीं किया, वी केप्ट इट एज इट इज एज, एंड देन व्हाट वी फाउंड दैट दिस टर्म एंड दिस टर्म गेट कैंसल, लेफ्ट विथ एफ एक्स ई एक्स. सो एंड प्लस सी, तो इंटीग्रेशन हो रही है तो कांस्टेंट रहेगा ही, सो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी. सो दिस वे वी केम टू नो द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट. तो मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया है, तो ये रिजल्ट अब आपके ध्यान में रहना ही चाहिए. ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम इस पे भी बड़े बेसिक सिंपल एनडीए में पूछे जाते हैं. ठीक है डियर, सो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी. फाइन. नाउ क्वेश्चन कम्स कि समटाइम्स स्टूडेंट दे आस्क, सर इज इट नेसेसरी टू रिमेंबर दिस रिजल्ट? यस ऑफ कोर्स, नहीं तो आपको दो बार बाई पार्ट्स करने पड़ जाएंगे और इतना लेंदी हो जाएगा कि, और एट द एंड अब सोचो इस फॉर्मूला से एक लाइन में आंसर आ रहा है, बट आप इस फॉर्मूला को भूल जाओगे, तो यू हैव टू डू 2 times बाई पार्ट्स. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए. इवन 12वीं बोर्ड में ये
1 मार्कर में भी आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप तो। चलिए डियर, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस फॉर्म। चलिए एक प्रॉब्लम मिल लेता हूं इस फॉर्म के अंदर। लुक एट दिस, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज I equals to integral e to the power x 1 by x minus 1 by x square into dx, ठीक है, this is bracket, so e to the power x 1 upon x minus 1 by x square, ठीक है। now we have to get the solution of this। तो अपने को ये रियलाइज करना होगा कि ये फॉर्म देखो आप, दिस इज e to the power x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स को ये मैच कर रहा है या नहीं। तो हमारे पास अगर मैं एफ एक्स देखूँ 1 बाई एक्स, तो इसका डेरिवेटिव डियर क्या होगा, एफ डैश एक्स, ऑल ऑफ यू नो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, फाइन। तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव अपने को मिल रहा है, बीच में हम क्या डाल दें, प्लस डाल दें। सो लुक एट दिस, ई टू द पावर एक्स, इसको यहाँ 1 बाई एक्स लिख देता हूँ और ये प्लस, और यहाँ मैं इसको माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इंटू डी एक्स। ऐसा करने से क्या पता लगा कि दिस इज योर एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स, और बीच में हमारा प्लस आ गया, एंड दैट इज व्हाट अ फॉर्म। फॉर्म क्या है हमारे पास, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये क्या बन जाता है, डायरेक्टली e to the power x fx plus c, this is the formula। so यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया fx 1 by x है और उसका डेरिवेटिव भी आ रहा है माइनस 1 by x स्क्वायर, एंड इन बिटवीन प्लस भी है। सो डायरेक्ट मैं इसका आंसर क्या लिख दूंगा डियर, e to the power x into fx, fx क्या है 1 by x plus c, so the answer is e to the power x upon x plus c, ठीक है, this is C। Understood dear? This is very simple form। ये आपके दिमाग में रह जाए तो एनडीए में इस फॉर्म पे एक प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप क्लियर हो गए क्या क्या हुआ, ये एफ एक्स हुआ और प्लस एफ डैश एक्स हमने क्रिएट किया, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिख रहा है अपने को डेरिवेटिव। तो इनसाइड इंटीग्रल हमारा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन गया, और ई टू द पावर एक्स है ही। फॉर्मूला क्या कहता है, e to the power x fx, this is what your result। ठीक है, ये रिजल्ट आपके ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम करने के बाद इट विल कम इन योर पेन, ये याद हो जाता है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना है, ये प्लस होता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये प्लस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, बच्चे भूल जाते हैं यहाँ प्लस। सो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। चलिए, नाउ विल मूव टू सम मोर प्रॉब्लम इन दिस फॉर्म, देखते हैं। लुक एट दिस, इंटीग्रल ऑफ e to the power x cos x minus sin x, ठीक है, अपॉन sin square x इंटू dx, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है यहाँ पे आपको, e to the power x cos x minus sin x अपॉन sin square x। सो देखते ही आपको ये चीज़ ध्यान दे देना है डियर कि किस फॉर्म में आप जा रहे हो, किस फॉर्म की ओर दे रहे हो। तो ये फॉर्म देखने पे आपको रियलाइज हो रहा है कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हम बना सकते हैं। वो कैसे, लुक एट दिस, ई टू द पावर एक्स, मैं कॉस बाई साइन को अलग करूं तो ये कॉट एक्स और 1 बाई साइन आ गया कॉस एक्स, ठीक है, माइनस
साइन बाई साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 1 बाई साइन विच बिकम्स कॉसेक एक्स, ठीक है, एंड इंटू डी एक्स। क्लियर? सो यहां तक हम क्लियर हो गए कैसे कैसे हुआ। कॉस बाई साइन स्क्वायर हमने पता है, कॉस बाई साइन स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर, तो एक मैंने कॉस बाई साइन लिया, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, एंड अनदर वन इज 1 बाई साइन एक्स। सो यू नो कॉस बाई साइन एक्स इज कॉट, दिस कॉट, एंड 1 बाई साइन एक्स इज कॉसिक एक्स, ठीक है, एंड माइनस साइन बाई साइन स्क्वायर बच गया 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स इज कॉसिक एक्स। सो e to the power x, now we have to decide कौन एफ एक्स और किसको एफ डैश एक्स बनाया जाए। तो आप देखो कॉसिक एक्स का डेरिवेटिव, कॉसिक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स होता है, तो माइनस कॉसिक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस कॉट एक्स कॉसिक एक्स, ठीक है। सो हमने क्या किया डियर कि यहाँ पे कॉट एक्स इंटू कॉसिक एक्स रहने दिया, ठीक है, प्लस यहाँ पे इसको मैं कर दे रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ जो एफ डैश एक्स आपको बताएगा वो माइनस कॉसिक एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। सो दिस विल टेल यू दैट अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट दिस, ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू विल गेट, तो यानी ये हमारा एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। कई बार इस चीज को समझने में कई बच्चों को दिक्कत, सर वाई यू मेड इट डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, आप डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखो, बट आपके समझने के लिए कि मैंने ये सोचा कि वहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये मिलेगा, यानी ये आपका एफ एक्स, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर एफ एक्स, ये एफ एक्स है और इसका एफ डैश एक्स मेरे को ये मिल रहा है, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख दूं कि एफ एक्स मैं इसमें क्या ले रहा हूं, माइनस कॉसिक एक्स को, ठीक है, और इसका एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा अपने को डियर, पॉजिटिव आ जाएगा बिकॉज कॉसिक एक्स का माइनस होता है, एंड माइनस माइनस प्लस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो यहां से मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं, हमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों मिल गया, तो आंसर इज गोइंग टू बी ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, एफ एक्स क्या है हमारा माइनस कॉसिक x plus c. So the answer is minus of e to the power x cosec x plus c. ठीक है, so इस प्रॉब्लम का क्लियर हो गया what we did in this sum, e to the power x cos x minus sin x we separated first, so we have this cot x cosec x and minus cosec x, then we make it in form of our e to the power x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म को मैच कराया हमने, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, दिस वी क्रिएटेड हियर, एंड देन वी केम टू नो दैट एफ एक्स इज गोइंग टू बी माइनस कॉस एक्स और उसका डेरिवेटिव भी अपने को उधर ही मिल रहा है प्लस कॉट एक्स कॉसिक एक्स। सो आंसर इज ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, एंड एफ एक्स इज माइनस कॉसिक एक्स, ठीक है डियर। चलें इस और भी कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आए ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग जो आप रिजल्ट याद रखेंगे, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज गोइंग टू बी ई टू पावर एक्स एफ एक्स, ठीक है। चलिए एक सम और मैं देखता हूं इसमें, एंड देन विल मूव टू इन डिफरेंट फॉर्म। इसमें तो बहुत सारे सम बनते हैं, मैंने स्पेसिमन लिया है ये सारे एग्जाम्पल। चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं हम, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट में ले लीजिए x, ब्रैकेट में हमने ले लिया डियर x log x
प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू डी एक्स। तो अब आपको दिखने में लग ही रहा है कि ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में है, प्लस भी बीच में दिख रहा है। तो आपने इसको स्प्लिट किया, e टू द पावर x अलग करोगे तो ये रहेगा log x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। ये तो स्ट्रेट अवे दिख रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी, इसको मैं क्या ले लूँ एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ रहा है। डायरेक्ट आंसर आ गया e टू द पावर x एफ एक्स हमारा क्या है log x प्लस c। फाइन, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, करेक्ट। ये कितना बड़ा दिख भी रहा है इंटीग्रेशन, बट लुक एट द, इफ यू रिमेंबर द फॉर्म यू कैन गेट इजीली द आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। सिंपल फॉर्म याद रखना है डियर, इफ यू रिमेंबर फॉर्म तो ये इस टाइप के प्रॉब्लम यू कैन डू इट। एक और सिचुएशन देखते हैं, e टू द पावर x ब्रैकेट में ले लीजिए आप रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, दिस इज रूट हियर, ये रूट है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइन, तो आप फिर से देखो ये फॉर्म में e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की ओर प्रोवोक कर रहा है अपने को। तो मैं इसके सोल्यूशन पे आता हूँ डियर। e टू द पावर x, अब मैं सेपरेट करूँ अंदर तो ये और ये कैंसिल होगा तो यहाँ रह जाएगा डियर साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये क्लियर दिख रहा है कि ये एफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव यहाँ मिल रहा है, तो दिस इज एफ एक्स एंड ये एफ डैश एक्स हो गया। वी नो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बीच में हमारा प्लस है ही, तो आ गया फॉर्म में e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। सो डायरेक्टली वी कैन राइट आंसर e टू द पावर x एफ एक्स क्या है साइन इनवर्स x प्लस c। So this is going to be the answer of this integral। ठीक है, चलिए अभी अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स करके साथ पार्शियल फ्रैक्शन की ओर एंटर करेंगे, जो इंटीग्रेशन का लास्ट सेगमेंट है। सी व्हाई आई एम डूइंग लॉट ऑफ सम्स इन इंटीग्रेशन, बिकॉज डिफिनेट इंटीग्रल में आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। ये सारे सम वैसे ही होंगे, इसमें केवल लिमिटिंग वैल्यू डाली गई होगी। ठीक है, तो बाई वन गेट वन वाला हिसाब है। यहाँ जितना प्रैक्टिस करोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन यू विल फाइंड वेरी सिंपल। ठीक है ना, तो मैक्सिमम सम आप इनडेफिनेट इंटीग्रल में बनाइए, सो दैट डेफिनेट इंटीग्रल में यू विल एंजॉय, बिकॉज वहाँ भी सेम चीज करना है, एंड में आपको लिमिटिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, एंड दैट इज वाई वी आर डूइंग मोर प्रॉब्लम इन इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, कई बुक में भी देखो आप, कॉम्पिटिटिव बुक में भी यू विल फाइंड इंटीग्रेशन के सम 400-400 500-500 दिए हुए हैं। ठीक है, बट स्टूडेंट क्या करते हैं सॉल्व कर ही लेते हैं एक बार वंस। आपके टेक्स्ट बुक में अराउंड 500 प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सो दैट इज वाई इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा आप कनेक्ट होके पढ़िए, सारे वीडियोस को कनेक्टेड होते हुए जाइए, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कीजिए, सो इट विल कम इन योर पेन एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट देयर। अब तक सारी मैथमेटिक्स आपको जब सिंपल लग रही है, तो इंटीग्रेशन आई बिलीव इट इज वेरी सिंपल। ये कॉन्सिक्वेंसेज है आपके पूरे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, सारे डिफरेंशिएशन सब पढ़ने के बाद ये सेगमेंट आपको मिक्सचर दिखेगा। कभी देख रहे हैं आप, कभी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, रूल यूज करना पड़ता है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज मैथमेटिक्स ना, इट्स अ मिक्सचर, और मिक्सचर पे ही कंट्रोल करना है आपको। जब मिक्सचर पे कंट्रोल होगा यू विल फाइंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए, सो in next video we will discuss some more problems and forms. So